Hello students, in this video we are going to start off with a new chapter that is polymers. Polymers जो है ना, it is a very simple topic, it's a very small topic, काफ़ी सारी चीज़ें ना इसमें repetitive है. When we talk of polymers, so what we are going to do today is basically we will try to understand what are polymers, and once we cover that part, एक बार हमने वो समझ लिया कि polymers क्या होता है, फिर ये चैप्टर को ना broadly हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. The first part is about the general properties of the polymers. The second part is about individual polymers की काफ़ी सारे polymers हम लोग पढ़ेंगे तो उनको आप बनाओगे कैसे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उस पे ये पार्ट आएगा. ओके, सो स्टार्ट करें polymers. Now when we talk of polymers, poly का मीनिंग होता है many. ओके, सो ये जो polymers है, it is basically a combination of two words. Poly means many and when I say mers, it simply means molecules. So when you have many molecules and आप इन सारे molecules को जब join करते जाते हो तो what you get is a polymer. आपको जो मिलता है उसको कहा जाता है polymer. And वो जो process होती है जहाँ पे बहुत सारे molecules को join करके आप जब polymer बनाते हो तो इस process को कहा जाता है polymerization. Polymerization. Okay. So polymerization क्या होता है? Polymerization is basically a process in which many molecules join together to form a polymer. ये आया आपको समझ में? Okay. Now ये polymerization जो होता है ये आपको पता ही है कि बहुत सारे molecules को आप join करते हो, तो जिन molecules को join करके polymer बनता है उस molecule को कहा जाता है monomer. So mono means one, mer means single, mer means molecule. So monomer is basically a single molecule. ये ना यूनिट सेल की तरह है. सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा है ना कि आप बहुत सारे यूनिट सेल्स को ज्वाइन करते हो तो व्हाट यू गेट इज अ कंप्लीट क्रिस्टल, आपको एक बड़ा क्रिस्टल मिलता है. बाय द सेम लॉजिक आप बहुत सारे मोनोमर्स को ज्वाइन करते हो. सो व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ मोनोमर्स and when you join many monomers, n molecules of monomers, you will get a polymer. Okay, ठीक है. Now ये जो polymers होते हैं, when we talk of polymers, हम लोग क्या क्या चीजें करने वाले polymers में. See, polymers है ना, आप surrounded हो, there are many polymers that you use in everyday life. Polythene bags होती है ना, ज्यादा आपण प्लास्टिकच्या पिशव्या म्हणतो, polythene bag. Polythene is polyethylene. So which means many molecules of ethene join together to form polyethylene. PVC pipes होता है, right? तो PVC pipes are nothing but polyvinyl chloride. बहुत सारे vinyl chloride molecules को आप join करोगे तो आपको polyvinyl chloride मिलेगा. Nylon is another example of a polymer. फिर कई बार वो PET bottles आप सुनते हो, PET, तो PET is also nothing but a polymer. उसके बाद टेफ्लॉन is a polymer. So बहुत सारे polymers, plastics are nothing but polymers. So बहुत सारे polymers जो है वो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं. टेफ्लॉन हो गया, ओके, उसके बाद मे बी फॉर एग्जांपल टेरिलीन हो गया, टेरिलीन इज अ पॉलीमर. उसके बाद बेकलाइट हो गया. सो ये सारे पॉलीमर्स ही होते हैं. रबर इज अ पॉलीमर. ओके, तो नाउ पॉलीमर्स का हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं. सो वी विल लुक एट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. ना ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है. ओके, सो पहला जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द सोर्स. ओके, सोर्स मतलब कहां से ये पॉलीमर्स अवेलेबल है, वेदर दे आर अवेलेबल naturally in the nature या फिर whether they are man made or whether they are semi synthetic. Okay, so हर एक पॉलीमर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं. So पहला है natural polymers. Now when we talk of natural polymers, they are directly available in nature. Okay, so they are derived, they are found in plants and animals. अच्छा, हर एक इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू रीड द टेक्स्ट बुक या हम लोग जो नोट्स दे रहे हैं उस नोट्स के अंदर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में क्वेश्चंस है, मतलब वो नोट्स आर इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म. उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. यू हैव टू रिमेंबर दोज एग्जाम्पल्स. ओके, सो जैसे ही आप ये वीडियो देखते हो उसके बाद टेक्स्ट बुक पढ़नी है एंड आपको नोट्स पढ़ना है.
ओके उसके बाद सो नेचुरल पॉलीमर्स आर डायरेक्टली फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. उसके बाद आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स. Now semi-synthetic polymers क्या होता है? These semi-synthetic polymers they are derived from plants and animals, but then उन पे कुछ वर्क किया जाता है. Okay, so say for example, okay, rayon. So semi-synthetic क्या होता है कि आप naturally कोई तो एक मटेरियल यूज करते हो जो naturally अवेलेबल मटेरियल है, जैसे सेल्यूलोज. ओके एंड इस सेल्यूलोज पे फिर आप कुछ ट्रीटमेंट करते हो और इसको यूज करके देन यू मेक अ फाइबर और देन यू मेक अ पॉलीमर. उसको कहा जाता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. आपको आया समझ में? सो इट इज मेड फ्रॉम अ मटेरियल विच इज अवेलेबल नेचुरली, बट देन आप इसको एक दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट करते हो. एंड फाइनली देन यू हैव सिंथेटिक पॉलीमर्स. सिंथेटिक पॉलीमर्स आर प्योरली मैन मेड पॉलीमर्स. So these are man-made polymers. जैसे नायलॉन हो गया. नायलॉन is an example of a synthetic polymer. So based on the source, polymers can be classified as natural, semi-synthetic and synthetic. I hope this is clear to you. Okay. Examples are very, very important. Please go through the examples that are given in the textbook. Okay. उसके बाद आता है classification based on the स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर्स. सो पहला क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने देखा दिस वाज बेस्ड ऑन द सोर्स. द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर. ओके नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. लीनियर, सेकेंड वन इज ब्रांच्ड एंड थर्ड वन इज क्रॉस लिंक्ड. ओके नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ लीनियर, सो नाम से ही पता चलता है लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, उसको लीनियर कहा जाता है. ओके सो व्हेन वी टॉक ऑफ लीनियर पॉलीमर्स, ओके तो लीनियर पॉलीमर्स जो होता है ये ऐसे स्ट्रेट होता है. यू कैन सी दैट कहीं पे भी कोई ब्रांचिंग नहीं है. आपको ये ऐसे ऊपर नीचे दिख रहा है, दैट इज फाइन. इट मीन्स देर इज नो ब्रांचिंग इन दिस. ऐसा नहीं हो रहा है कि यहां से कोई ब्रांच निकल रही है, यहां से कोई ब्रांच निकल रही है. तो ऐसे जो पॉलीमर्स होता है, ऐसे पॉलीमर्स को कहा जाता है लीनियर पॉलीमर्स. ओके देर इज नो ब्रांचिंग इन बिटवीन. ओके नाउ एग्जांपल्स जो इनके हैं दैट इज HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथेन. उसके बाद PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड. तो ये जो है एग्जांपल्स, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलीमर्स. नाउ ये जो लीनियर पॉलीमर्स है इनके 2 चेन्स के बीच में, ये एक चेन है, ये एक चेन है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली योर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फाइन. सो ये हो गया आपका लीनियर पॉलीमर. अब इसके बाद आता है ब्रांच्ड पॉलीमर. व्हेन वी टॉक ऑफ ब्रांच्ड पॉलीमर, ओके नाउ ब्रांच्ड पॉलीमर के अंदर क्या होता है? ब्रांच्ड पॉलीमर के अंदर अलग अलग ब्रांचेस निकलती है. सो बेसिकली अगर चाहिए आपका पॉलीमर है तो कहीं कहीं से ऐसी ये ब्रांचेस निकलेंगी, ये इस तरह से ब्रांचेस होंगी. सो दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ अ ब्रांच्ड पॉलीमर. सो ब्रांच्ड पॉलीमर के अंदर क्या होता है? देयर आर ब्रांचेस प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशंस. सो ये आपकी एक लीनियर चेन है. इस लीनियर चेन में यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है. so इनको कहा जाता है बेसिकली ब्रांच्ड पॉलीमर्स. ओके एग्जांपल ऑफ ब्रांच्ड पॉलीमर इज लो डेंसिटी पॉलीइथेन, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथीन. इनके स्ट्रक्चर्स ना हम लोग आगे देखेंगे कि ये किस तरह से बनते हैं. वी विल लुक एट देम. बट अभी बस आपको ये समझना है कि व्हाट आर ब्रांच्ड पॉलीमर्स. सो लीनियर पॉलीमर्स के अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, बट ये जो ब्रांच्ड पॉलीमर्स है, इन ब्रांच्ड पॉलीमर्स के अंदर देयर आर ब्रांचेस. ओके उसके बाद द थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर बेसिकली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, जिनको नेटवर्क पॉलीमर्स भी कहा जाता है. क्रॉस लिंक्ड और
network polymers. Okay. Now when I say cross-linked or network polymers, so to give you an example, say for example you have a chain. Okay. ये एक चेन है, ये मान लो दूसरी चेन है. ओके. नाउ क्या होता है कि कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं या कुछ कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, जैसे डाइसल्फाइड लिंकेज, ये कॉमन है, रबर्स के अंदर ही आपको दिखाई देती है. नाउ डाइसल्फाइड लिंकेज क्या होता है? ओके, यू वुड हैव, ये ऐसे दो चेन्स है. नाउ यू विल हैव टू सल्फर एटम्स, one will be linked to this, second one will be linked to this. Now you can see that ये क्रॉस लिंकिंग के वजह से क्या होता है कि क्रॉस लिंकिंग के वजह से ये जो दो चेन्स है ये एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो दो सल्फर एटम्स है दे आर होल्डिंग दीज चेन्स टुगेदर. करेक्ट. सो व्हेन वी टॉक ऑफ क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स, बेसिकली देयर इज दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जिसमें ये डाइसल्फाइड लिंकेज है, एंड इस लिंकेज के वजह से ये जो दो चेन्स है, दीज टू चेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. नॉर्मली ये जो इस टाइप के पॉलीमर्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि आप देखो ना, व्हेन यू कंपेयर इट विद दिस, आप जब इसके साथ कंपेयर करते हो तो इनके बीच में बस वैंडर वाल्स फोर्स है, कोई प्रॉपर ऐसे बॉन्ड नहीं है जो इन दोनों को पकड़ के रख रहा है. बट इस केस में ऐसा नहीं है ना. इस केस में तो यू हैव टू सल्फर एटम्स विच आर होल्डिंग ऑन टू दीज मॉलिक्यूल्स. ओके, तो ये जो दो सल्फर एटम्स है ये फेविकॉल का काम करता है. बेसिकली ये दो चेन्स को ऐसे पकड़ के रखता है, जिनके वजह से ये जो आपका पॉलीमर होता है, दिस पॉलीमर बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलीमर. ओके, देयर आर स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स. सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. Bonds are present. Strong covalent bonds are present. Okay. अगर जो मुझे आपको एग्जाम्पल देने हो तो इट कुड बी बेकलाइट इज एन एग्जाम्पल. अच्छा, वल्कनाइज्ड रबर इज एन एग्जाम्पल. अच्छा, अभी हमें कैसे समझ में आता है कि स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं यहाँ पे? सी, रबर बैंड होती है वो भी रबर से बनी हुई होती है, और टायर्स जो होते हैं वो भी रबर से बने हुए होता है. बट टायर्स आर वेरी हार्ड, जबकि रबर बैंड जो होता है वो इजीली स्ट्रेचेबल होता है ना. द रीजन इज बिकॉज कि टायर्स के अंदर ये सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है, जिसके वजह से टायर्स हार्ड होता है, आराम से स्ट्रेच नहीं हो पाते. बट रबर बैंड्स के अंदर सल्फर कंटेंट आपका कम होता है, इससे वो आराम से ऐसे स्ट्रेच हो जाता है. ओके, तो ड्यू टू दीज सल्फर बॉन्ड्स, ओके, ड्यू टू दीज लिंकेजेस, द पॉलीमर बिकम्स हार्ड. ओके, इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग. फाइन. ओके, नॉर्मली ये जो क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर्स होते हैं, दे हैव गॉट बायफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर्स. सो दे आर फॉर्म्ड from bifunctional or trifunctional monomers. Now what do you mean by bifunctional or trifunctional monomers? हम लोग ना आगे जाके अलग अलग टाइप के मोनोमर्स देखेंगे. कुछ कुछ मोनोमर्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे मान लो बस डबल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा. बट कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल, कुछ कुछ मोनोमर्स ऐसे होता है जिनके अंदर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होता है. सो से फॉर एग्जांपल, ओके, इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे यू हैव CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, एंड ये साइड पे यू हैव NH2. Now you can see that this compound has got two functional groups. एक तो ये COOH, तो एसिड वाला पार्ट हुआ, एंड दूसरा NH2 है विच इज एन अमाइन पार्ट. करेक्ट. सो इस टाइप के जो मोनोमर्स होते हैं इनको कहा जाता है बाय फंक्शनल मोनोमर्स, बिकॉज दे हैव गॉट टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स.
कुछ कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ मोनोमर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं. मान लो कहीं पे OH भी होगा या कहीं पे और एक डबल बॉन्ड भी होगा. सो दे विल बिकम ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स. एंड नॉर्मली इन्हीं को यूज करके ये क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर्स को बनाया जाता है. सो आई कैन नाउ से स्ट्रक्चर के बेसिस पे polymers can be classified into 3 types: linear, branch and cross-linked. Okay, and cross-linked polymers are relatively very strong as compared to linear and branched. ठीक है. So I hope this is clear to you. अब जो नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है, ये नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, कि पॉलीमर वो बन कैसे रहा है. Okay. So classification based on polymerization process. Okay. So there are 2 types of polymers. Okay. First one is addition polymer. And second one is condensation polymer. Now when I talk of addition polymer के अंदर क्या होता है कि monomers are simply added to each other. Okay, so when I say addition polymer, monomers are added to each other. ओके. एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो होता है, वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में ऐसा नहीं होता. कंडेंसेशन पॉलीमर्स में जब आप मोनोमर्स को ऐड करते हो तो साथ में आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालते हो, जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और मिथेनॉल आर रिमूव्ड. ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और मिथेनॉल आर रिमूव्ड. ओके, सो जब कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन प्रोसेस में ये ऐसे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनको बाहर निकालते हो जब आप, तो उस प्रोसेस से जो पॉलीमर बनता है उसको कहा जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर. एंड एडिशन पॉलीमर वो होता है कि जहां पे मोनोमर्स आर सिंपली एडेड टू ईच अदर. आप कोई भी छोटा मोटा मॉलिक्यूल बाहर निकालते नहीं हो. ओके, फाइन. अच्छा, अब ना हम लोगों ने अब तक एग्जाम्पल्स किए नहीं है. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लुक एट हाउ आर सम ऑफ द पॉलीमर्स प्रिपेयर्ड. बट बिफोर वी डू दैट there is one more way in which you can classify the polymers. So last type of classification is based on the molecular forces. Okay, classification based on molecular forces. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस. ओके, सो इसके बेसिस पे सबसे पहला टाइप जो होता है दैट इज इलास्टोमर्स. इलास्टोमर्स नाम से ही समझ में आता है कि दीज पॉलीमर्स आर इलास्टिक इन नेचर. दे कैन बी स्ट्रेच्ड. ओके, ना इफ दे कैन बी स्ट्रेच्ड तो मतलब इनके बीच का, मान लो कि ये एक ऐसी पॉलीमरिक चेन है एंड ये दूसरी पॉलीमरिक चेन है. इफ यू कैन स्ट्रेच देम मतलब आप इन दो चेन्स को ऐसे एक दूसरे अपार्ट खींच सकते हो ना, एक दूसरे से दूर खींच सकते हो. नाउ दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक. ओके, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दिस हैज टू बी वीक. इज वीक.
एग्जाम्पल वैंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जो प्रेजेंट हो तो दैट इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड व्हेन इट इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो दो लीनियर चेन्स है आप इनको एक दूसरे से दूर खींच सकते हो। ओके, सो एग्जाम्पल इज रबर। रबर जो होता है वो इलास्टिक होता है। ओके, सो वैसे रबर सॉलिड है बट इट इज नॉट अ रिजिड सॉलिड ना। रिजिड मतलब जिसका शेप चेंज नहीं हो सकता उसको हम लोग कहते हैं रिजिड। तो रबर रिजिड नहीं होता, रबर का शेप आप चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज द शेप ऑफ द रबर। ओके, द रीजन इज बिकॉज कि रबर के अंदर ये जो चेन्स होती है, पॉलीमर चेन्स होती है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिलेटिवली वीक। इट इज योर वैंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, ओके, नाउ नॉर्मली ना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है, तो आप अगर जो कई बार क्या होगा कि थोड़ा भी स्ट्रेच कर दोगे ना तो ये इलास्टोमर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, नाउ ब्रेक ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े जगहों पे ये ऐसे डाइसल्फाइड लिंकेजेस, ऐसे कुछ कुछ लिंकेजेस हम लोग ऐड कर देते हैं। ये लिंकेजेस ऐड करने पे क्या होता है कि दीज लिंकेजेस इम्पार्ट सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ ओवर हियर, ताकि आप फोर्स लगाने पे ये टूटेगा नहीं, ये स्ट्रेच होगा बट अगेन इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, सो इलास्टोमर्स दे आर इलास्टिक इन नेचर। The weak van der Waals force of attraction is present between different chains. Okay, and I can say that few cross links are introduced. Few cross links are introduced to impart strength and elasticity. ओके, अब सेकेंड टाइप के जो पॉलीमर्स है विच कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर फाइबर्स। Now fibers are very strong, very strong. Okay, they have got high tensile strength. That is modulus of elasticity is high. Now टेंसाइल स्ट्रेंथ जब बहुत ज्यादा है तो व्हाट डज दैट मीन? अगर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो इट मीन्स जैसे स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है तो आप बहुत ज्यादा लोड भी लगाओगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल नायलॉन की वायर है। ओके, इस नायलॉन वायर पे आप बहुत ज्यादा लोड भी लगाओगे तो भी ये वायर जो है ये टूटेगी नहीं, इट विल नॉट ब्रेक, बिकॉज नायलॉन हैज गॉट अ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, सो इसलिए माउंटेनियरिंग के जो रोप्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो आप बहुत बार क्या करते हो कि आप यहाँ पे ऐसे कहीं पे तो रोप हार्नेस कर देते हो एंड देन यू क्लाइंब इट। ओके, तो ये जो रोप्स होती है ये नायलॉन की होती है, आप ऑब्वियसली यहाँ पे रबर बैंड नहीं लगा सकते ना, राइट, वो रिस्क नहीं दे सकते। सो यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलीमर्स। सो फाइबर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलीमर्स, दे हैव गॉट अ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेर वीक, सो यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, ओके, नाउ यहां पे क्या होता है कि यहां पे देयर इज वन मोर थिंग। ओके, ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ये जो चेन्स होती है, फाइबर्स की जो चेन्स होती है, ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पैक हो सकती है। ओके, सो आई कैन से दैट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ओके due to strong forces, close packing
of chains is possible, and due to close packing of chains, what you get is this leads to a crystalline structure. ठीक है. अच्छा, उसके बाद द नेक्स्ट टाइप इज थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स. हाँ, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होता है? दीज पॉलीमर्स कैन बी रीमोल्डेड. मोल्ड करना मतलब उनको शेप देना. सो दीज कैन बी रीमोल्डेड. इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं, दे बिकम हार्ड ऑन कूलिंग एंड दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग. सो यू हीट इट टू हाई टेम्परेचर्स, ये सॉफ्ट हो जाता है. आप इनको जो शेप देना है आप वो शेप दे सकते हो. एंड वंस यू गिव देम दैट शेप, फिर आप इसको कूल कर दो. आप इसको कूल कर दोगे तो इट विल अगेन बिकम हार्ड. तो आपको जो भी शेप देना है इन पॉलीमर्स को, आप वो शेप दे सकते हो. ओके, दीज आर लीनियर और slightly branched polymers. अब इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन पॉलीमर्स, मान लो कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की ये ऐसी दो चेन्स है. दिस इज वन ऑफ द चेन्स. मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रांचिंग है. दिस इज अनदर चेन. तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज स्ट्रॉन्गर देन दैट प्रेजेंट इन इलास्टोमर्स. इलास्टोमर्स के अंदर हमने देखा है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इट इज वेरी वेरी वीक एज कंपेयर टू दैट. यहां पे जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है. बट फाइबर्स के कंपैरिजन में, फाइबर्स में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. फाइबर्स के कंपैरिजन में थर्मोप्लास्टिक के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वीक होता है. सो आई कैन से दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिटवीन force of attraction is somewhere in between elastomers and fibers. Okay, now if I have to give you an example is polythene, polyvinyl chloride, PVC. okay, ये polystyrene. तो ये सारे जो है ये these are all examples of your thermoplastic polymers. ये सारे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हैं. ठीक है. सो थर्मोप्लास्टिक की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही होती है कि दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, दे बिकम देन अगेन हार्ड ऑन कूलिंग, सो दे कैन बी रीमोल्डेड. आप इनका शेप बार बार चेंज कर सकते हो. ओके, लास्ट वन इज योर थर्मोसेटिंग पॉलीमर. They cannot be remolded. Okay, आप इनको वापस रीमोल्ड नहीं कर सकते. They cannot be remolded. Okay, ये जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स है, दे एक बार वो हार्ड हो गए. आपने पहली बार उनको हीट किया, दे बिकेम सॉफ्ट. आपने चाहिए वो शेप उनको दे दिया. फिर आप एक बार उनको कूल करते हो तो दे विल बिकम हार्ड. उनका वो हार्डनेस परमानेंट होता है. सो हार्डनेस इज परमानेंट. आप उसको वापस हीट करके सॉफ्ट नहीं बना सकते. आप उसको वापस उसका शेप चेंज नहीं कर सकते. सो आई कैन से हार्डनेस इज परमानेंट. ना इतनी परमानेंट हार्डनेस कैसे आती है? ये इसलिए आती है क्योंकि देयर इज एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग. आपको याद है हमने क्रॉस लिंक पॉलीमर्स या नेटवर्क पॉलीमर्स पढ़े थे. उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर्स के बीच में ये इस तरह के लिंकिंग्स होते हैं ना. एंड मैंने कहा था कि दीज लिंकिंग्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके,
इनके वजह से हार्डनेस आ जाता है. ओके, तो जितने ज्यादा लिंकेजेस होंगे ना उतना ज्यादा हार्डनेस होगा. सो आई कैन से दैट देयर इज एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग. Extensive cross linking. Okay, they cannot be, जैसे मैंने आपको बताया कि they cannot be remolded, that is they cannot be reused. Example जो है, that example is bakelite. Bakelite जो होता है, this bakelite cannot be reused. आप इसको वापस रीयूज नहीं कर सकते. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्लासिफिकेशंस. हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस जो देखे हुए हैं, ये क्लासिफिकेशन अलग अलग पैरामीटर्स पे बेस्ड थे. सो पहला था, इट वाज बेस्ड ऑन सोर्स. द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. उसके बाद जो क्लासिफिकेशन था, दैट वाज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन प्रोसेस. ये प्रोसेस ना आपको उतनी अच्छे से समझ में नहीं आई होगी, इसके हम लोग जब एग्जाम्पल्स करेंगे तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा. अभी बस ये याद रखना है कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बेसिस पे आप दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हो, एडिशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, और इनके जो भी डेफिनेशन है वो आपको टेक्स्ट बुक से याद रखना है. ओके, या नोट से आप पढ़ोगे तो नोट्स में आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन एग्जाम्पल्स दिए है, वो आपको याद रखना है. एंड देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस. इसके अंदर भी 4 टाइप्स आता है, इलास्टोमर्स, fibers, thermoplastic, and then thermosetting. Okay, please remember the classification of polymers is very very important, extremely important. Definition पता होना चाहिए, classification पता होना चाहिए, and आपको examples पता होने चाहिए. ठीक है, so I hope you will remember this, you will write this properly. आप वो टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे, आप नोट से पढ़ोगे एंड खुद के नोट्स बनाओगे. ठीक है, सो चलो देन आई स्टॉप ओवर हियर. इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट आई डू इज, मैं बस बहुत सारे पॉलीमर्स का फॉर्मेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. ओके, फाइन, चलो बाय.